اصل میں چاہتے ہیں کہ جس طرح شہباز شریف ڈگیوں میں جایا کرتے تھے اور یہ ایکسپیکٹ کرتے کہ ہم کوئی ڈگیوں میں جائیں گے، ہم ڈگیوں میں جانے والے لوگ نہیں ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کا فیوریٹ ایکٹر کون ہے؟ ہاں میں بہت زیادہ فلمیں نہیں دیکھتا۔ اچھا فیوریٹ کرکٹر کون ہے؟ فیوریٹ کرکٹر عمران خان بہت اچھا کھیلتے تھے، بہت اچھا کھیلتے تھے۔ عمران خان کے علاوہ باہر دنیا میں انٹرنیشنلی آپ بات کریں، وراٹ کوہلی اچھا کھیلتے ہیں، اس کے علاوہ کوہلی آپ انڈین ہو، انڈین کو سپورٹ کر رہے ہیں، غلط ہے کہ ایک فوجی کے شہادت پر آپ لافٹر دیں، یہ ہمیں بھی درد دیتا ہے۔ نمبر 804 نمبر 804 نمبر 804 صاحب اس وقت گاڑی سے اتر کے آگے جو ہے وہ بھی اس وقت یہاں پہ پہنچ چکے ہیں۔ افسرا انڈیا راستہ جو ہے چیف منسٹر کا روک لیا جی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نہر ہے اور یہاں پر آپ کیوں نہیں جا سکتے، کہتے ہیں جی اجازت نہیں، آگے سے جناب میسج آیا ہوا ہے تو لہٰذا اجازت نہیں ہے، تو انہوں نے راستہ روک لیا، ہم یہاں پر کھڑے ہیں۔ پاکستان کی سڑکیں پاکستان کی عوام کی ہیں، یہ آئین کا آرٹیکل 15 آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ سڑکوں پر چل سکتے ہیں، گاڑی چلائیں، پیدل چلائیں، یہ آپ کا حق ہے، یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، کسی کی مالیت نہیں ہے، کسی کی ذاتی جو ہے اس کے اندر ملکیت نہیں ہے، بلکہ یہ عوام کی ہیں سڑکیں، یہ عوام، یہ ملک پاکستان کی عوام کا ہے، روکے کھڑا ہوا ہے۔ آپ کا قافلہ کیوں روکا؟ غلط طرف ووٹ دیا۔ اچھا سی ایم صاحب بتائیے گا آپ کا قافلہ کیوں روکا گیا ہے؟ ابھی آپ چل رہے تھے، کہاں سے نکلے، آپ کا قافلہ کیوں روکا گیا ہے؟ دیکھیں میں حسان یاسر صاحب کے گھر جا رہا تھا اور عمر سرفراز چیمہ صاحب جو ہمارے اسیران میں آتے ہیں اور ان کو ناحق سزا ہوئی ہے، قید میں ہیں، تو ان کا ادھر جو ہے میرے خیال میں گھر کوئی انہوں نے جو نو گو ایریا بنایا ہوا ہے وہاں پر آتا ہے، اور ادھر روک دیا تھی۔ میں پوچھ رہا تھا ان سے کہ مطلب یہاں پر پاکستان ختم ہو رہا ہے، یہاں سے کوئی دوسرا ملک شروع ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ پاکستان ہی ہے، لیکن بہرحال ہمیں یہاں روک دیا گیا اور آگے جانے کی اجازت نہیں دے رہے، تو پتہ نہیں پاکستان کو وہ کیا بنانا چاہ رہے ہیں۔ سر وجوہات آپ نے پوچھی، ان کو وجہ بتائی گئی ہو آپ کو؟ وجہ ہی تو نہیں بتاتے ہیں، کل سے جو ہے میں لگا ہوا ہوں کہ آپ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ یہاں اجازت نہیں ہے، تو یہ مجھے ریٹرن میں دیں کہ اجازت نہیں ہے۔ کس قانون کے تحت اجازت نہیں ہے؟ بغیر گن مین کے جانا چاہتے ہیں، جو سرکاری ان کی پولیس ہے اس کے بغیر جانا چاہتے ہیں، تب بھی نہیں جانے سی ایم صاحب بار بار کہتے ہیں کہ پوچھ کے بتاتے ہیں، ہمیں سے پوچھنا ہوگا ان کو سر۔ پتہ نہیں یہاں پر جو ہے حکومت کس کی ہے۔ نہیں ابھی جو سیکورٹی آفیسر ہے ان سے کیا بات ہوئی آپ کے بزرگوں کی، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ میں نے یہ آفر دی ان کو کہ چلے آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہمارے پاس گن مین ہیں اور آپ کے علاقے میں جو ہے بندوق صرف آپ ہی پھرا سکتے ہیں، باقی کسی کو اجازت نہیں ہے، تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ایک ہی گاڑی میں ہم چلے جاتے ہیں، ہمارے پاس کوئی گن مین بھی نہیں ہوگا، لیکن وہاں پر حاضر لگانی ضروری ہے تاکہ جو غلط طریقے سے سزائیں ہماری لیڈرشپ کو ملی ہیں تو ان کو یہ احساس ہو کہ ہمارے کارکن، ہمارے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہاں پر ہم کوئی احتجاج کرنے نہیں جا رہے، وہاں پر کوئی جلسہ نہیں ہو رہا، صرف جو ہے وہاں گھر میں حاضری ہوگی اور ہم پھر واپس آئیں گے، لیکن اس کی بھی اجازت نہیں، ایک گاڑی کی بھی اجازت نہیں دے رہے، تو مجھے نہیں پتا کہ یہ پاکستان کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، اور ایسا سلوک تو کم سے کم ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، اور مسلسل آج تیسرا دن ہے ہمارا، اور ہمارے ساتھ یہ رویہ ہوتا آ رہا ہے، یہ غلط پیغام دے رہا ہے پورے پاکستان کو، اور اس سے نفرتیں مزید بڑھیں گی۔ اور یہ اصل میں چاہتے ہیں کہ جس طرح شہباز شریف ڈگیوں میں جایا کرتے تھے
और ये एक्सपेक्ट करते कि हम कोई डिग्गियों में जाएंगे, हम डिग्गियों में जाने वाले लोग नहीं हैं। पूछ के बताते हैं। तो इसकी जब क्या हमें- रीजन, हमें- किससे पूछना होगा इनको सर? पता नहीं यहाँ पर जो है हुकूमत किसकी है। नहीं, अभी जो सिक्योरिटी ऑफिसर है उनसे क्या बात हुई आपके बुजुर्ग की, वो क्या कह रहे हैं? वो मैंने ये ऑफर दी इनको कि चले आप कह रहे हैं कि मतलब हमारे पास गनमैन हैं और आपके इलाके में जो है बंदूक सिर्फ आप ही फिरा सकते हैं, बाकी किसी को इजाजत नहीं। पूछ के बताते हैं। तो इसकी जब क्या हमें- रीजन, हमें- किससे पूछना होगा इनको सर? पता नहीं यहाँ पर जो है हुकूमत किसकी है। नहीं, अभी जो सिक्योरिटी ऑफिसर है उनसे क्या बात हुई आपके बुजुर्ग की, वो क्या कह रहे हैं? वो मैंने ये ऑफर दी इनको कि चले आप कह रहे हैं कि मतलब हमारे पास गनमैन हैं और आपके इलाके में जो है बंदूक सिर्फ आप ही फिरा सकते हैं, बाकी किसी को इजाजत नहीं है। तो हम इस तरह करते हैं कि एक ही गाड़ी में हम चले जाते हैं, हमारे पास कोई गनमैन भी नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर हाजिर लगानी ज़रूरी है ताकि जो गलत तरीके से सजाएं हमारी लीडरशिप को मिली है तो उनको ये एहसास हो कि हमारे कारकुन हमारे लोग हमारे साथ खड़े हैं। और वहाँ पर हम कोई एहतजाज करने नहीं जा रहे, यहाँ वहाँ पर कोई जलसा नहीं हो रहा, सिर्फ जो है वहाँ घर में हाजिरी होगी और हम फिर वापस आएंगे, लेकिन उसकी भी इजाज़त नहीं, एक गाड़ी की भी इजाज़त नहीं दे रहे। तो मुझे नहीं पता कि ये पाकिस्तान को किस तरफ लेके जा रहे हैं, और ऐसा सलूक तो कम से कम एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ नहीं होना चाहिए। और मुसलसल आज तीसरा दिन है हमारा, और हमारे साथ ये रवैया होता आ रहा है, ये गलत पैगाम दे रहा है पूरे पाकिस्तान को, और इससे नफरतें मजीद बढ़ेंगी। और ये असल में चाहते हैं कि जिस तरह शहबाज शरीफ डिग्गियों में जाया करते थे और ये एक्सपेक्ट करते कि हम कोई डिग्गियों में जाएंगे, हम डिग्गियों में जाने वाले लोग नहीं हैं। हमने जाना वहीं पे है, हसन नियाजी के घर हमने जाना है, उमर सरफराज चीमा के घर हमने जाना है। उन्होंने उनकी पार्टी के लिए और इस मुल्क के लिए खिदमात हैं, उनको जिस तरीके से कैद के अंदर डाला गया है, हमारा फर्ज है कि हम यहाँ पे आए, चीफ मिनिस्टर साहब आए, उनके घर जा रहे। अब तो अब क्या कि बाज़ इलाके जो है वो नो गो एरिया हो और बाज़ इलाकों के हम जा सके। किधर है आइन का आर्टिकल 15 क्या कहता है कि हम कहीं पे भी फ्री जा सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो ये जो है सिलेक्टेड किस्म की चीज़ है, देखते हैं अब सर इंशाल्लाह। आपको वजूहात क्या बताई जा रही हैं, क्यों नहीं जा सकते? कोई वजूहत नहीं है जी, वहाँ पे इजाज़त नहीं है। वो हम तो ये अडियाला के सामने भी सवाल करते हैं कि किसकी तरफ से इजाज़त नहीं, यहाँ पे भी कर रहे हैं। कल को जो है वहाँ पे जब आ रहे थे लाहौर, हर जगह पे यही बात की जाती है, इजाज़त नहीं है। किसकी तरफ से है नहीं है इजाज़त, वो बताओ, वो नहीं बता अभी रहे। कहाँ जा रहे थे? यहाँ किनार रोड पे जैसे सीनियर मिनिस्टर साहब ने बात की है, मीना खान अफरीदी साहब ने, कि हम उमर सरफराज चीमा साहब के घर जाना चाहते थे और उनके साथ साथ हसान साहब के घर जाना चाहते थे, तो हसान नियाजी साहब के, तो इन्होंने यहाँ पे नो गो एरिया बना दिया है। अब ये इनकी मर्जी है, कहीं हमें जाने देते हैं, कहीं हमें रोक देते हैं। हम फ्रीली मूवमेंट करना चाहते हैं, हम अपने असरान से मिलना चाहते हैं, हम उन लोगों से मिलना चाहते हैं जो जेल में इस वक्त इमरान खान साहब के नजरिए के साथ खड़े हैं, जो इमरान खान साहब के बयानिए के साथ खड़े हैं। जिस तरीके से वो जिस जवाब मर्जी से कैद काट रहे हैं, हम बाकी के असीरान के घर भी गए हैं, हम हसान साहब के और उमर सरफराज चीमा साहब के घर भी जाना चाहते हैं, तो इन्होंने हमें रोक दिया कि आप आगे नहीं जा सकते। तो ये आप देख रहे हैं कि पंजाब में ये कैसे ट्रीट कर रहे हैं। हमें बड़ी अवामी मोहब्बत मिली, लेकिन हमें सरकारी नफरत भी मिली।
ये हर बंदे को, हर मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी को ये दर्द देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बंदा जो है उधर लाफ्टर देगा और ये पीटीआई की पॉलिसी है। आपने अभी इब्तिदाइया में बात की कि मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने जो पंजाब के साथ किया, तो हमने देखा कि आपने पंजाब के साथ किया कि यहाँ पे उस्मान बुज़दार सीएम था। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको उस्मान बुज़दार के पंजाब और आज के पंजाब में क्या फर्क नजर आया? सेकंड ये आज के बुज़दार और उसके नहीं, उस्मान बुज़दार के पंजाब में और मरियम नवाज के पंजाब में क्या फर्क नजर आया? कि आप यहाँ पे आते तो रहे होंगे। दूसरा आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या बतौर वज़ीर आला आपको किसी किस्म का कोई खौफ है? क्योंकि जब पीटीआई किसी भी वज़ीर आला को लेके आती है तो बड़ी ब्रांडिंग करके लेके आती है कि हम ले आए फलाना जुबान का बड़ा तेज है और ऐसे कर देगा, और फिर हम देखते हैं कि वो शेर के सामने बकरी बांध के भाग जाता है। तो आप भी अभी आए हैं तो आपको बहुत ज्यादा अवामी मकबूलियत तो हासिल है, लेकिन आप देखें कि जितने भी ये पीटीआई के सीएम से आज उनका कोई नाम लेना भी गवारा नहीं करता। तो क्या इस हवाले से कोई प्रेशर है आप पे कि अगर आप उस तरह से डिलीवर ना कर सके तो आपको भी इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ेगा? और आखिरी चीज ये है कि यहाँ की अवाम में ना कुछ खदशात है कि रेजिस्टेंस एक और चीज है और वो होनी भी चाहिए, और हम जो भी शख्स जो है मुश्किलात से दो चार है बतौर साथी, मेरा ख्याल है कि हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन कुछ एंटी स्टेट एक्टिविटीज होती हैं, उसमें अगर आपका कारकुन मुलविस पाया जाएगा या उसको प्रमोट करता दिखा जाएगा तो फिर और पाकिस्तानी मुझे कुछ तशवीश होगी। यहाँ पे किसी फौजी की शहादत होती है, वहां पे लाफ्टर के रिएक्शन होते हैं उस पोस्ट के नीचे, और जब उन आईडीज को देखा जाता है वो कहीं ना कहीं आपको फॉलो कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं आप उन्हें फॉलो कर रहे होते हैं। जहाँ पे पाकिस्तान अपने किसी बड़े हरीफ से मैच आता है वहां पे लाफ्टर के रिएक्शन होते हैं, लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। मैं इस सवाल से पूछना चाहूंगा कि रेजिस्टेंस को और ये जो एंटी स्टेट चीजें हैं इससे आप अपने आप को अलग किस तरह से देखते हैं? अच्छा, मुझे ये बताएं आपका फेवरेट एक्टर कौन है? एक्टर कौन? हाँ, मैं बहुत ज्यादा फिल्में नहीं देखता। अच्छा, फेवरेट क्रिकेटर कौन है? फेवरेट क्रिकेटर इमरान खान बहुत अच्छा खेलते थे, बहुत अच्छा खेलते थे। इमरान खान के अलावा बाहर दुनिया में इंटरनेशनली आप बात करें, विराट कोहली अच्छा खेलते हैं, उसके अलावा विराट कोहली, आप इंडियन हो, इंडियन को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, बात इसका मैं जवाब दे रहा हूँ कि एक बंदा जो है वो किसी पोस्ट को लाइक कर रहा है और वो इमरान खान की तस्वीरें कभी शेयर की हो उसने, तो आप उसको किस तरह जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैनिफेस्टो या पॉलिसी से लिंक कर सकते हैं? मेरी बात मतलब आप पीटीआई की पॉलिसीज को नहीं बोल सकते, एक बंदी की जाति जो है वो बोल सकते हैं कि उसका साथ है, और ये बिल्कुल गलत है कि एक फौजी के शहादत पर आप लाफ्टर दे, ये हमें भी दर्द देता है। ये हर बंदे को, हर मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी को ये दर्द देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बंदा जो है उधर लाफ्टर देगा और ये पीटीआई की पॉलिसी है, ये उस शख्स की जाती पॉलिसी होती है जो गलत है। आप ये देख सकते हैं कि ये वो मोहब्बत है या ये वो अवाम का अपने लीडर के साथ इजहार है मोहब्बत का, जो तकरीबन हर एक पॉलिटिकल जो लीडर है वो उसकी ख्वाहिश होती है कि उसे इस लेवल का प्यार मिल सके, लेकिन ये हर किसी की किस्मत में नहीं होता। बहुत सारे जो लोग हैं वो कोशिश करते हैं, बहुत सारी रिहर्सल करवा कर वो थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन ये जो नेचुरल चीज़ होती है वो बोलती है, बल्कि वो चंगाड़ती है। खासकर लाहौर की आवाम का जिस तरह के वो कल निकली और मुझे वेलकम किया तमाम रोड्स पर, ये मोहब्बतें मेरे लिए काफ़ी हैं। फातिमा बहन ने बात की कि जो दूसरे लोगों ने मेरी बेइज्जती की, मेरी टीम की बेइज्जती की यहाँ पर, तो ये मोहब्बतें इतने ज़्यादा हैं कि वो नफरतें जो हैं वो ज़ाहिर हो जाती हैं। मेरे लाहौर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेरों, इमरान खान के टाइगर जितने भी हैं, आपने किसी का इंतज़ार नहीं करना, क्योंकि ना ही आपके लिए अभी तारिक बिन ज़ियाद आएगा और ना ही मोहम्मद बिन कासिम आएगा। आप में से हर बंदा जो है खुद ही तारिक बिन ज़ियाद बनकर, मोहम्मद बिन कासिम बनकर जालिमों और जाबिरों का मुकाबला आप लोगों ने। ये जो जुल्म, जबर, फस्तायत हम देख रहे हैं, हकीकत ये है कि किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे में इस तरह नहीं होता जिस तरह पंजाब की हुकूमत, जाली हुकूमत यहाँ पंजाब की आवाम के साथ कर रही है। आपका कारोबार तबाह कर रही है, आपके चादर और चर दिवाली की पामाली हो रही है, हमारे बहनों के साथ जो बदतमीजी की जाती है उनको अरेस्ट किया जाता है। माइनर्स को जिनकी उम्र 18 साल से कम है, परसों भी उनको मार रहे थे, एक बच्चे को मैंने बचा लिया वहां पर। 18 साल से कम लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं, उन पर तशद्दुद कर रहे हैं। तो ये ना इसराइल फलस्तीन के साथ इस तरह कर रहा है, ना जो है इंडिया कश्मीर में इस तरह कर रहा है।
जिस तरह के पंजाब की जाली हुकूमत पंजाब की आवाम के साथ कर रही है, और ये इनकी जहन की अक्कासी है। ये ज़हनी तौर पर और अखलाकी तौर पर इतने पस्त हो चुके हैं कि इनको ताकत के नशे में, इक़्तिदार के नशे में आवाम नजर ही नहीं आ रही। बहरहाल जिस तरह 3 साल से मुसलसल आप लोग इस जबर का मुकाबला कर रहे हैं, मैं बजाते खुद पूरे पाकिस्तान की आवाम, पंजाब की आवाम को खिराज तहसीन भी पेश करती है और सलाम भी पेश करती है। हमने इंशाल्लाह इसी तरह खड़े रहना है, इनका मुकाबला करना है। जिस तरह के आप सबको मालूम है कि मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी के लिए कहा है, तो आप सब ने अपनी तंजीमें मुकम्मल करनी है। वार्ड लेवल तक जो है अपनी सारी तंजीमें आप मुकम्मल करें। दोबारा कॉल आएगी इंशाअल्लाह ताला, और स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल जब भी आएगी तो हमारी तंजीमें तमाम मुकम्मल होनी चाहिए, और इंशाअल्लाह ताला ये हकीकी आज़ादी की ये जंग हम जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप सबका, आपकी सबकी सपोर्ट मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। व मा अलैना इल्लल बला। पंजाब पुलिस ने जिस तरह ड्यूटी दी है, पंजाब पुलिस ने बहुत ज़्यादा ड्यूटी दी है। ये जो आपने देख रहे हैं मनाजर जो हैं, पंजाब पुलिस के जवानों ने बहुत लंबी चौड़ी ड्यूटी दी है। तो ये सारे जो मामलात हैं आप देख सकते हैं विजुअल्स, और फिर भी आवाम जो निकली है, आवाम निकल कर जो है जो कुछ हो सका है, आवाम ने कहीं ना कहीं अपना जो है इजहार है PTI के साथ, या सुहेल अफरीदी साहब को बताया है कि लाहौर की आवाम जो आज भी ज़मान पार्क के बाहर आकर जमा होना चाहती है। तो ये मनाजर आप देख सकते हैं। तो अच्छा, इस वक्त हम मज़ार इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पर पहुंच चुके हैं। जिस तरह कल फूड स्ट्रीट में लाइट्स बंद कर दी गई, पूरा मार्केट बंद कर दिया गया, कल जहां जहां पर हम जा रहे थे वहां तमाम जगहों पर लाइट्स बंद कर दी गई, वहां दुकानें बंद कर दी गई, वहां लोगों को मारा पीटा गया। आज उसी तरह इनको पहले से हमने शेड्यूल चूंकि दिया हुआ था कि हमने मज़ार इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी लगानी है, तो आज इन्होंने यहाँ की भी तमाम लाइट से बंद कर दी हैं, और बाहर जो है किसी को अंदर आने नहीं दिया जा रहा। और ये आप देख रहे हैं बिल्कुल जो है यहाँ पर तमाम लाइट्स ऑफ हो चुकी हैं, किसी को अंदर आने नहीं दिया जा रहा। बाहर जो आवाम खड़ी थी वो भी आप लोगों ने देखा। आज मुझे हसन नियाजी साहब के घर जाने नहीं दिया गया, उमर सरफराज चीमा साहब के घर जाने नहीं दिया गया, और तो ये सारी फस्तायत और एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ ये मुसलसल करते आ रहे हैं। तो ये हमारे दिल और दिमाग पर नक्श हो चुका है, और तमाम पाकिस्तानी ये इनकी ये जहनी और इखलाकी पस्ती देख रहे हैं। اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم لك الحمد كما انت اهله وصل وسلم على سيدنا محمد كما انت اهله وافعل بنا ما انت اهله فانك اهل التقوى واهل المغفره صلى الله تعالى على خير خلقه محمد. تو مزار قائد میں کہ جو بھی معاملات ہوئے آپ نے دیکھے کہ بڑی مشکل سے مزار قائد پر جانے کی اجازت ملی. اس کے بعد جو ہیں وہ جو حسان نیازی کے گھر پر جو ہیں باقاعدہ طور پہ جو سہیل خان افریدی صاحب آئے, اور ظاہری بات ہے حسان نیازی ایک بہت بڑی جو ایک قیمت چکار ہے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہونے کی, اور جو سہیل افریدی بھی یہ جانتا ہے کہ ہر صورت مجھے بھی جو ہے اس فیملی کا ساتھ چاہیے, اور اس فیملی کی مرہون منت ہی وہ ICMKP ہے. تو ڈیفینیٹلی اپنے ورکرز کے ساتھ جو ہیں وہ اظہار یکجہتی بنتا تھا, اور سہیل افریدی وہاں پر کرنے کے لیے ان کے گھر پہنچے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگوں کو بھگا رہے ہیں پولیس, اور یہ آپ دیکھ آ گیا ہے یہ انہوں نے پولیس کھڑی کی ہے. دوبارہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور سہیل افریدی صاحب کے لیے راستے بند کیے ہوئے ہیں.
ये लेके आते हैं और फिर बाद में रास्ते बंद कर देते हैं। और ये एक चीफ मिनिस्टर के इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, उसके लिए रास्ते बंद करते हैं। ये पंजाब पुलिस का रवैया है और पंजाब पुलिस को ये इन चीज़ों से पंजाब के गयूर अवाम का इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ। जिस तरह का प्यार उन्होंने मुझे दिया, जिस तरह की सपोर्ट उन्होंने दी, जिस तरह की मेहमान नवाजी उन्होंने मेरी की, मैं हमेशा इंशाअल्लाह ताला आपका मकरूज़ रहूँगा। इसके साथ साथ जो हमारी यहाँ की तंजीम है, ख़ुसूसी तौर पर हमारे मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हमारा राजा साहब, सलमान अकरम राजा साहब, ये 3 दिनों से मुसलसल मेरे साथ रहे, हर मौके पर मेरा साथ दिया। इसके साथ साथ हमारी लाहौर की तंजीम, चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब आलिया हमजा साहिबा, और ग्राउंड पर नईम हैदर पंचोता साहब, इंतज़ार पंचोता साहब, अली एजाज भुट्टर साहब, शौकत बसरा साहब, नईम पंचोता का नाम ले लिया, और नईम भाई हमारे चीते हैं। इसके अलावा अमार बशीर गुजर हमारे यूथ के ISF के मरकजी सदर हमारे साथ, अमजद साहब वो भी रहें। बाकी जितने भी अगर मैं नाम लूँ तो बहुत वक्त लग जाएगा। जिसने हमारा साथ दिया, हमारे साथ दिन रात एक किए, लाहौर को मोबिलाइज करने के लिए, पंजाब को मोबिलाइज करने के लिए, जहाँ पर वेलकम्स हुई मुख्तलिफ इंटरचेंज पर, तमाम दोस्तों का मैं मकरूज़ हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे पंजाब के गयूर यहाँ पंजाब में हमारे जो अपोजिशन लीडर हैं मोइन कुरैशी साहब, वहाँ जो जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं उन्होंने भी बेहतरीन प्रोग्राम का इनेकाद किया, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया। हमारी जो इंसाफ अब ये सारा 3 रोज़ा जो दौरा है सुहेल खान अफरीदी का, ये देखने के बाद आप ज़रा यह सोचें कि अगर सुहेल खान अफरीदी CM KP ना होते और पंजाब में इस तरह वो आते और इस तरह की मूवमेंट करना चाहते तो क्या कर पाते? तो इसका जवाब है हरगज़ ना कर पाते। तो इसके साथ ही जो इमरान खान साहब का जब उनके ख़िलाफ़ तरीके अदम अतमाद आई थी, तो हमारे जैसे नौजवानों की ये राय थी, तो हमारा तज़िया ये था, हम ये सोचते थे कि इमरान खान साहब को कभी भी पार्लिमान से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। चाहे जो कुछ भी हो जाता, वो पार्लिमान में अपोजिशन लीडर बन जाते, पार्लिमान को चलने देते और वहाँ से अपनी मज़ाहमत को स्टार्ट करते और बड़े अच्छे तरीके से वो जो है पूरे मुल्क के अंदर जो है एक मोबिलाइजेशन की तहरीक स्टार्ट कर सकते थे। KP में हुकूमत होती, पंजाब में होती, GB में होती, इसके अलावा आज़ाद कश्मीर में हुकूमत होती, तो इनके पास क्या होना था? कुछ भी नहीं होना था। तो वो एक गलती थी, वो टर्निंग पॉइंट था जो इमरान खान साहब से मैं समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल गलती हुई थी, और उसको हम बार बार जो है वो याद भी करवाते हैं कि आपने अगर किसी भी मुल्क के अंदर जमहूरी जदोजहद करनी है तो उसका बेहतरीन हल जो है वो पार्लिमान है। जब तक आपके पास कोई आइनी पोजीशन होगी, आइनी कुव्वत होगी, तो आप आसानी के साथ जो हैं फिर वो मामलात को टैकल कर सकते हैं। तो बहरहाल ये आज का जो सुहेल खान अफरीदी साहब पंजाब से वापस जा चुके हैं KP के, तो ये चीज़ वो ज़रूर सोचेंगे कि चाहे जितनी भी सख्ती थी, जो कुछ मर्जी था, तो वो पंजाब में 3 दिन अपना प्रोग्राम जो शेड्यूल है वो तकरीबन मुकम्मल करके गए हैं। तो अगर वो पंजाब के जो लोग हैं वो इसलिए नहीं निकल पाते कि उनके पास किसी भी किस्म की इस तरह टाइटलमेंट नहीं है, पावर नहीं है, तो जिसकी वजह से वो एक स्टेट उनको इस तरह ट्रीट कर सके। तो बहरहाल जितनी भी जमहूरी जमातें हैं उनके लिए सबक है कि जमहूरियत के अंदर रहते हुए हालात जितने भी बुरे हों तो आप जो है जदोजहद भी जारी रख सकते हैं और
جو ہے پارلیمان کی طاقت بہت بڑی ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے آپ جو ہیں بہت ساری جو پاورز آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں، تو خدا را جب آپ عوامی نمائندے بنتے ہیں تو عوامی ووٹ کا تقدس ہمیشہ قائم رکھا کریں، اور پارلیمان سے کبھی بھی نہ نکلنے کی غلطی نہ کیا کریں، نہیں تو پھر دوسری قوتیں جو غالب آ جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت، مجھے سبسکرائب اور سپورٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ۔